ভক্তি মাহাতো, নিপেন বাবু আইলা है আর হিন্দেলে দেখো লায়ন আমার কাসমান লাইলা মাস্টার সুরেশ বাবু আর যতেক জানন অজানন গড়ে সরে মাই মসি কাকি জেঠি সবকেই যাকরা উমরে বড় ওখরাকে বড় লাগে হন ছোটরাকে আদর চুম আশিস আর ভালোবাসা জানাইকে বেশি সময় না নেইকে যতটা কম সময়ের মধ্যে আমি পারো কথাটাকে আমি থুম দেবে তো কোথায় কোথায় কিছু কিছু না করলেও নাই। একবার আমি টাটা গেরই হয় একটা ভোজ ঘরে তো তোরা পরিচিত একটা রহে লোক ওকে কোয়া যাইতে আমার হেসলা খেকলা মানে শাস্ত্রীজি কইতেন ঠিক যদি কে কাকরো কাকরো জানলা হন তো ভড়রয় না কন্ঠিনটা মাস্টারি করে হলা তো উভো গেল আমার সঙ্গে তু বেচারে গোবর মাছ খাইনি তো এরকম মস্ত বড় প্যান্ডেলটা লেখক রহে মানে শাকাহারি আর দমে ভুখে রহে হলা তখন তো লাগতো আমি ভিতর দিকে যাব এ তো শাকাহারি তো শাকাহারি ভিতর দিকে ঢুকলা এই করলে রহল বাদে পাড়ি কাটিনের মতন ও ছোট ছোট দুইটি ইহাদের মিষ্টি অকর বাদে ভাত যখন চলি আইলে এ ভাত যখন দিলে তিয়ন যখন আইলে তখন তিয়নটাই একটা মস্ত বড় খাসি হাড় পাওয়ালে ওকর হাড় বাইরে গেলে কার খাতা নিরামিষ ঠিক তেসনে আমরা তো বাহির দিকে গেলে শুনিয়া বইহ যে কুর্মি কুরমালিক নেতাচারী যে ভাখিচারী মহাজড়ুয়াহি আর তিনটা যখন শুনে পাওয়া তখন ভাখিচারী ন ভাই ভাখি ছাড়ি এটা তো বুঝালাই পারে হলি কুর্মিক ভাখি তো হিন্দি নহে কুর্মিক ভাখি হলো কুরমালি হেলে তুই বুঝালাই পারে আর তুই না পারে কুরমালিক ভাষাই তোকে কহেলাই হতো হিন্দি কহলে তুই কুরমালিক মান করাটা একদম বেকার কুরমালিটা তো কুর্মিক ভাখি হলো কুরমালি আর আমরা যদি ভাই হিন্দি কহে যাই তাহলে হিন্দিটা তো তোর ভাখি লো সেই শাকাহারিক জায়গায় হার পাওয়ালে তো আজ আমরা কে বুঝে দরকার যে আমরা এ যে জড়ুয়াহি যে করলাই হোক কাহে কে ঠিক জড়ুয়াহি জানি লেবে যখন মানুষের কোন রোগ অসুখ হবে তখন যে ডাক্তার কাজ যাক তেসনে আজ আমরা কুর্মী সমাজের মধ্যে যে মহাব্যাধি রোগ ঢুকি গেলা হে এ রোগটা বুঝাবে খাতিরে আজ আমরা তোর জড়ুয়াহি কবে কোনটা রোগ যেসন যেসন সুগার যেসন প্রেসার যেসন জন্ডিস তেসনে আমার ভাখি তেসনে আমার চারি আর তেসনে আমার ধর্ম ইগলা আমরা মধ্যে ঢুকি গেলা হে আমার ভাখি আমার মধ্যে নাই চারি আমার মধ্যে নাই আর আমার লোকে আপন ধর্মটাও বিসরি গেলা মানে যেসন খেতে একটা আজ আহে বাড়ির মধ্যে যেসন একটা সিঁয়াজ আহে এ আজ বা সিঁয়াজ গিলা আহি কইকে আমরা জানে পারিও যে আড়টা কি পাটটা হামর আড়টা কি পাটটা দশর কাকরো তেসনে বাড়ি কর সিঁয়াজটা আহি কইকে আমরা জানে পারিও সিঁয়াজটা এই ধারটা হামর আর সিঁয়াজটা উধারটা অন্য লোকে আচ্ছা কহানো ভালো যদি আড় বা সিঁয়াজটা যদি না রহে তেলে হেলে আমরা সবাই বুঝলাই পারতে লিও যে হামর পন্থিল্লা অন্য লোকের পন্থিলে জানো তেলিও জানো তো নাই তো ঠিক তেসনে কুর্মি যাইতে যে প্রত্যেকটা যাইতে করে শুধু কুর্মিক নাই সবে যাইতে কর আপন আপন চাল চলন আপন আপন নেক নেগাচার আপন আপন ধর্ম করম আহে তো কুর্মি করো যে জাতি সত্তা মতলব কুর্মিক ভাখি কুরমানি কুর্মিক চারি হলো 12 মাসে পরব তিহার আর ধর্মটা হলে আমরা কর সত্য প্রকৃতিক পূজারী আমরা হইল বাস্তববাদী গাছ পাথর পাহাড় পর্বত নদী নালা চাঁদ সূরজ গ্রহ নক্ষত্র মাটি পানি আগ হাওয়া আসমান এহে সবে কর আমরা পূজারী মেন্তু কাজ যদি দেখে লাই যাও কুর্মিক ভাখি কুরমানি তো কুরমানি ভাখি আজ আমার খতমের দিকে সিরায় বসলা হে যেসন কিনা ন বিহন গাড়ির মতন জানে পাবে
বোকারু জেলায়, ধানবাদ জেলায়, আরো তোর মানে শিলিগুড়িতে গেলে ঝালদা, তুমিন, কোটশিলা, জয়পুর, আর আরসা অধ্যক্ষা, পাড়া থানা অধ্যক্ষা, বাঘমুন্ডি অধ্যক্ষা, এতনাটুকু বিহন গাড়ির মতন বা চলা। তাছাড়া যদি আমরা দেখে যাই তো আমরা যখন বাংলার দিকে যাই তখন লোকে কথা বাংলা ভাষা, উড়িয়ে মানে উড়িষ্যা যদি আমরা মিটিং এ যাই হোক ওরা উড়িয়া উড়িয়া, আর যখন আমরা একটু চাষ মরলে রাখতে হবে হোক তখন আমার যত লোকে কহ হিন্দি ভাষা, মানে আপন যেটা মাই ভাষী এটা সব বিসরি গেল। তো এ যে বিসরে মূল কারণটা না, এটা মূল কারণ হলো সমাজ ব্যবস্থা দেখার জন্য দায়ী, মানে সরকার আমরাকে ভাষা ভিত্তিক শোষণ কইকে কুর্মীরাকে একদম দুর্ভোগ বনাওলাছি, কেশর বুড়বক বনাওলাছি। ইঠিনে হাই স্কুল কোনছি না, রামরুদ্র হাই স্কুল দেখবে যেটা হাই স্কুল যে চিন্তা মানে ছোয়াকে পড়াচ্ছি মাস্টার বোধ হয় যে 14-15টা না কইটা, আর অনেক বিষয় চিন্তা ঢের সাবজেক্ট পড়াচ্ছি। তো যে চিন্তা দমে বিষয় পড়াচ্ছি ওইটা তোর আহো ভূগোল আহো, বিজ্ঞান আহো, ইতিহাস আহো, তোর অঙ্ক মানে ম্যাথমেটিক্স আহো, আর তোর হিন্দি আহো, সংস্কৃত আহো। এই যে সংস্কৃত ভাষাটা যে আমরা লোককে পড়াচ্ছি, আমরা লোকে যে পড়ো, সরকার যে সংস্কৃত মাস্টারটাকে ও স্কুল টাইম চাকরি দেওয়া হয়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, ওইটা মাসে মাসে বেতন তো পাবে করে, মানে যখন মানে রিটায়ার হয়ে যেত তখন অবসর লেতা তখন ওকে ঘরে বসিকে বেতন দেওয়া হতে। কিন্তু যে আমরা সমাজে 1 ঘন্টা ধরিকে সংস্কৃত পড়ো হোক, ই পড়াটা সারা জীবনে কোন কামে আমরা লাগতি নেই লাগে। অনেক লোকে আমার লোকে দেখি কে কেউ রামায়ণ পড়লা, রামায়ণ শুনলা, রামায়ণে লেখলা হে যে রাবণ কিনা সীতাকে চোরি করি লেগে খুনে কিনা যোগী বেশ ধারণ করি কিনা সন্ন্যাসী বেশে 14 রূপে আয় হই, আর অন্য কিনা সীতাকে ভিক মাগর হয় যে ভিক খান দেহি সংস্কৃত। তো আমরা যে পড়াই হো সংস্কৃতটা, তবে কি শ্বশুর ঘরে যাইকে সংস্কৃত মাগবে যে জলম দেহি, এটা তুমি করো তো তোর সংস্কৃতটা কাহা কবে বোটটারি খাতে, তাহলে সংস্কৃতটা আমার কোনো কামে লাগা হলি, সেইটা সরকার আমরাকে পড়ালা। আর আমার কর্মী লক্ষ লক্ষ কর্মী বাদ দেইতো অনেক যাইতে আমরা কুড়মালি ভাষাটা বুঝত, কিন্তু কুড়মালি ভাষায় পঠন পাঠনের সরকার ব্যবস্থা লেইনি। আজ যেটা চালু হলে মাস্টাররা যেটা কহ সেটা তো সবে আন্দোলনের ফল, হামদমি করার বাদে। কিন্তু সংস্কৃতটা পড়ে খাতিরে তো আমরা আন্দোলন কবল করিও নি, কিন্তু তাকর মাঝে তোকে সংস্কৃতটা ঢুকাই দিল। আর হে যে ভাষা আজ অবশ্যই জানি রাখবে যে দেখা আজ আমরা ভাষা হারাইকে কেছন দিশা হারা হলাই, যে কি একটি যদি তো হেগো তোরা কি হিঁদে ছাগরা হল তো ঘরে ছাগরা হল ছাগর কি কেছন ভেবাই গো আচ্ছা ছোট লাল বাবু রাঁচি ले जाए हे बाबू देख যদি ছাগর কি উঠি কেছন ভেবাই হ্যাঁ বহু রকম করে। আচ্ছা বাঙ্গাল দিকে আমার চারিয়ান বাবু, আচ্ছা ছাগর কি তোর কেছন ভেবা বাবু, তাহলে ছাগল গরু কাড়া গিলান পশু গিলাই আপন বলি চলিটা ঠিক রাখে লাই পারলা। আজ আমরা মানুষ হইকে এতনা দুর্বল বনলাই হোক যে কি আপন ভাষাটাকে আপন ভাষাটাকে বিসরি দেলাই হোক। উড়িয়া দিলাই উড়িয়া কহ, তোর ঝাড়খণ্ডের দিলাই হিন্দি কহ, আর যেগুলা বাংলায় সেগুলা বাংলা কুর্মী বাংলা কহ। তো আজ আমার দমে কুরবানি ভাখি পথি রেখা হেলা, তোরা সব পথি পড়িকে ভাখিটাকে বচাই রাখবে হে সবারকে কুরবানি পড়াবো। এ ভাষা বাঁচলে আমার দিশা বাঁচতি, দিশা বাঁচলে আমার সমাজ বাঁচতি। আর যেটা চারি চারি মানে কইতে কোনটা 12 মাসের যে পরব দিয়া আমরা তোর কুরবানি বছরের মহান পয়লা দিন যা কবে হেতন তরুণ বাবু পয়লা দিন, এ আখান যাত্রার দিন, এ আখান যাত্রার দিনে
তখন একদিনে আমরা লোকে এখন যাত্রার দিনে যাত্রী উড়াবে তেলা হর গ্রামে প্রত্যেকটা কুর্মী গ্রামে যাত্রী উড়ার সিস্টেম রয়েছে এখন আহে যাত্রী উড়া আহে কাহা যাত্রী উড়া হর গ্রামে হবে তাল যদি আহে তো এবার লোকের টিয়া চৈকে কিনা দরকার আমি যখন তোরাতে সুধিয়াবো এবার ধান চাষ করো না জানো আবার লোকে করো না আমরা নেই করিও তো পুরা তো হলো নির্বাচন তোর গ্রামে হবো তোর কাহিনী হবো ঠিক তেসনে এখন যাত্রার দিনে আমরা লোকে তখন বেধা বিধা করে চলাম এখন করো ঘরে ঘরে কাহনি হবে তোরা গ্রামেই হবে সব গ্রামে হেন নাই ঠিক হ্যাঁ হ্যাঁ তো যদি তোর গ্রামে হলো তো আচ্ছা কোন কোন গ্রামে বেধা বিধা হবেন হাত উঠাও না ভালো হাত উঠাও না কোন কোন গ্রামে বেধা বিধা হবে ভালো দেখা কোনো লোকে নাই কাকরা নেই তো হোক যাবে আপনি বেধা বিধা হবে তাহলে তোরা তিন চারটা গ্রামেই হবে ঠিক তেসনে আমার লোকে কহে দিলা যে কি শিখর নাগপুর 18 পরগনা ঘরে ঘরে ফুল যাই লায়া কুछ শোনা আমরা কর মানে আমরা কর প্রত্যেকটা পূর্বী গ্রামে সারুল পূজা হয়ে চলে এখন সারুল পূজা হর গ্রামে হবে হবে সবকে দেখবে তবে কোন হাতটা উঠালে তো তাহলে কোন জায়গায় হবে বাকি কোন গ্রামে ওরকম মানে হেলে কে নেই আর আমার দেখুন আমি যখন ছোট রহে হলিও তখন আমরা মানে পথি পূজা হয়ে গেলে মাঘ মাসে আর हमके तक हमर लोग के हमर जेगला जोड़ी हमर ले जेगला बड़ो ओकरा कोए तला चाले रे सिरका बाज जाबे আমি কম ভাই সিরকাবাজ কাহে যাবে লোক সিরকাবাজে চালে দেখবে বোকা একটি সরস্বতী মেড় হে না মানে ইঠিলে তোরাকে চাষ যাই হে তখন তবে মানে সরস্বতী তখন মেড় দেখে লাই পাবে তেলিও এখন গাঁয়ে গাঁয়ে 10টি 5টি মেড় হলো হোক আর সবারা ওদের পাতের মতন মতন ফোন লেলা হাত চেন্নাই রাজস্থান পাঞ্জাব হরিয়ানা দিল্লি বোম্বাই খাটে লাগেলা হাত আর ঘরেক লোক ঘরেক সবাই করে ফোন আহে একরা ফোনা ফেলে গল্প করো হোক যে হেরে যে ঠান্ডাটাকে সরলে নহব কায়দে দমে কালহারে হুঁদে না হুঁদো আহেকে তো বাকি সব খবর কহে তখন এই কহে কিনা গ্রামের কথা কিনা ছোয়া গিলাই সেদিন যে সরস্বতী মেয়েটিকে ভাসালে ঠিক তো দুইটা ডিজে করে রহ আর বোকা 10 বোতল মদ ওই কয়েক हमराके 15 তারিখে যাইলাই দে ওকর বাদে हमराकर ऊपर পুলিশটিকে ভাসাবে হেতে মানে ওকরা আবহ আর আই খুনে বিনা করলা হেট কুলিয়া ছোয়া দিলেন করো রহ দুইটা ডিজে একরা উপর কুলিয়া দাঁড়া করো 4টা ডিজে আর ওকরা করো 10 বোতল মদ তখন একরা করো 20 বোতল মদ বড় হতো তো এহে যে মদ খাইকে ভাষণ কর মানে আগুন হয়ে লাগে ভাষণ সেই ভাষণটাকে বদলাইকে নাম দিচ্ছে কিনা না বিসর্জন আর বিসর্জন কথাটাকে সন্ধি বিচ্ছেদ করে গেলে কিনা দাঁড়ায় না 20 যুক্ত অর্জন সমান বিসর্জন মতলব ওদিন আমরা ছোয়ারা বিসর্জন করো গাঁজা খাওয়া ভাঙ খাওয়া সিদ্ধি খাওয়া আর মদ খাওয়া আর এরকম কইকে বিসর্জন করে লাই যাতো তো এই যে বিসর্জন মদ খাইকে কেসর অর্জন হবে গেলে মানে মদটাকে চেলে হবে বাবু মৌ হবে আচ্ছা কোহান বলো যেদিন জানো কিনা গাছ টালে মৌ ঘাটি খসে যেদিন গিরে সেদিন গাছ টাল গমে পাতলা রয়ে নেব মৌহাটি যখন গাছ টালে গিরে তখন পাতলা রহে नहीं रहे ताले केसन रहे एकदम खड़रा माने जैसे আমার লুগাটা খুলি দিলে আমি হয়ে যাব খড়রা তো সেই রকম গাছটা একদম বেবস্ত্র উলঙ্গ নাংটা মতন দেখায় কেসনে যেই নকিনা মহুলে কচল রস খাই খাতা মদ খালে মন্তু লোকটা একদম নাংটা হয়ে যাতা উলঙ্গ হয়ে যাতা মান সম্মান ইজ্জত করি কোনো রস্তাই নেই তার জন্য আমার সমাজে
মদটাকে কলাতে কিটা বারুন, তবে মদ খালে অকর কিন্তু বুড়া তাক নেই। যে লোকটায় মদ খাতে ও কব বুড়ায় মদ তাক নেই, বুঝলে হতো। তবে কবে হেব কি চিরদিন জুয়ানের হতা, জুয়ান নাই, মরে কুমোর হেরাইতে হেরাইতে আদু যেতা, মানে ও বুড়া তাক নেই কব। আর একটা কিনে মদ যদি কেউ দমে খায় তাহলে অকর ঘরে কব চোরি হেঁটে নেই, তাহলে চোরে জানে যে মাতালের ঘরে কোনো কিছু নাই, খেয়ে বহু ঠিক লোহা খাড়ুটা বাদ দিকে। তারপর জন্য বাছারা মদটাকে আমার সমাজে খাইহা না, মদটাকে ছাড়বে। আর এদের চারি মধ্যে আমরা দেখে লাই পাবে হোক ধুরা পরব রহে, যখন ধুরা পুরা হেবে ধুরা পরবটাও গেল এটাই রহন মাটি জানো, আর পিঠাটা পরব সেই মাত্রই। আর আমার লোকে যখন যাওয়া উঠাবে তারা গরম পড়বে, তখন কুড়মালি যাও গিলাই একটা আনন্দের ঢেউ বহে চলে, মানে 50-60টি বেটি ছোয়া চলে যায় চলা যাওয়া উঠার লাই। আর আইখুনে আখড়া জায়গায় যেগুলা ওল ফল জায়গা ওখানে নাচ নাচে তেলা 5 বছরের বেটি ছোয়া গুলো শুরু করি একদম 80 বছরের বুড়ি পর্যন্ত নাচে তেলি। আর যেদিনটা গাড়ি পূজা হেরে তেলে ওদিনটা একদম বেড়া ডুবলে, মানে সারা রাত নাচে তেলা। এখন হবে এটা তো খতম হয়ে গেল। আর জিতা পরব যখন হেরে তেলে তখন জিতা পরবে গাড়ি পুজোর বাদে আমরা যে গাড়ি নাচে তেলা ঘুমন নাচে তেলা, তখন শ্বশুরে বাজাবে তালা নাগড়া, ভেসুরে বাজাবে তালা ঢোল, তো আপন সঙ্গে ঝুমর গাবে তেলা, শাস পুতহু ননদ ঠাকুরজি পত্নীরা একে সঙ্গে পাতা ধরিকে নাচে তেলা। মানে বিহান বেলা যদি কোন যাওনি কোন গল্পনিক সঙ্গে যদি লিয়া ঝগড়া ঘেস বজড় হেলা হে, আর সন্ধ্যের সময় যদি ওই মানে হাত পাইন ধরিকে হাতে হাতে আর যদি নাচে তেলি, তাহলে কি ওকর সেই বিহানের টেনশনটা রহে তেলে নিহরে তেলে, তাহলে আমার সমাজটা এতনা সুঘড় রহে। যখন কিনা নাচ ভাঙ হেরে তেলে তখন আমরা কর বান্ধনা পরবে লজকাইয়া তেলে, মানে শহরই কি বাংলা গীত হীরা গীত শুরু হয়ে গেলে। আর ওদিন নেই আমরা লোকে জানে তেলা গোলা গলি নে বুঝে তেলা যে আমরা গোরখিয়া টাই আর জিনিস গিলাকে কন্দে লেগে বাহে, মানে ওটাইডে গোরখিয়া টাই ও হীরা গীত বাংলা গীত গাও তেলা। সেই খাতিরে এখন আমরা কর বাংলা পরব পাইরা গেলে তো টাইডে কি করে শহরে গীত শুনে রহে। এক মাস আগুলে ঘাটি বাঁধে তেলা, এক মাস আগুলে ঘুঙুর দেবে চলতে, এখন ঘাটি মানেই তো ছোড়ারা বুঝত নেই। আর যদি না কিনা তারা ফুটাই আর ঘাট ঢুকে তেলা, তখন আমরা টুসুক গীত শুরু হয়ে গেলে। এখন টুসুক গীত হবে নাই, তখন আমরা কর ধান কাটে যাই তেলা মাইমসিরা টুসুক গীত গাহি গাহি, হাট বাজার যাই তেলা টুসুক গীত গাহি গাহি, কোন কাম করে গেলে তোর টুসুক গীত গাহি গাহি করে তোলা। এখন তো তোর বাউড়ি গিরাইতে আমি যে হোক ঢুকাই ঘরে ডিজে, আর তোর ডিজে হোক কখন ডিজে ধনের বাবু মানে তোর বাবুর সঙ্গীত, নাহলে তোর ভোজপুরিয়া না নাগপুরিয়া না বাদল পাল, কোনো ঠিক নেই। আর আমরা তো যখন বিহা ঘরে তেলে তো হেঁট কুলিং কোন ছোলার বিহা মানে শুনালে উপর কুলিং মেয়েরা রুবিলা বিহার গীত গীত গাহি খেপাই যাইতেলা, কত বাবা গাঁয়ে হেঁটে গেল। কেউ কেউ তো আমার ভয়া দেখো, কেউ কইতেলা আমরা কর মানে মিটান হেঁকো, কোন রকম কোন নেতা জড়িকে আর গীত গা হতো, আর তরি তরি গীত গা হতলা, আর টিপি টিপি গীত গা হতলা, খড়কা বিছি বিছি গীত গা হতলা। এখন তো বোধ হয় প্রত্যেক তো হাইলাইট তো বোধ হয় ছাড়ি দেওয়া আছে, হাতে খাতে নাই লোকের দেখি কে তো কাগজে খাইলাই শুরু করো না, তামা করবো যে আর কিনা করো, মানে পকেটে ঢুকাও কোনো খুন চাইন কোনো ঠিক নাই। তাহলে আমার লোকের দেখি কে তো সবটা করো। দেখবে গ্রামে গ্রামে সবার আজকাল চুল কাটো, চুল তো চুলটা কেসন কাটো, দেখবে বড় বড় যেগুলা পাহাড় ডুংরি রয়ে গেলে বড় বড় গাছ গিলা তখন কাটা গেলা হে, ছোট ছোট এখন গাছ আছে সেই মানে ভোর ভরি ঝুলের মতন দেশে ওই কাটা করা হয় চুল গিলা, বড় বড় গিলা কাটাই একদম খতম করকে ঝুলের মতন তোর ভোর ভরি ঝুলের মতন
আর সেই গরু বাছুর যেসব উঠানামা করলে রাস্তা হয়ে যায় তেসনে লাঠিকে ওরকম করা হয় এটা করিকে যে কোনটা করে হবে কই জানে লোকের দেখি এই ফ্যাশনের জন্য। আর যদি আজ আমরা দেখে যাই তো বিহার গীত গেলে আরো সব পরবের গীত গেলে তবে একটা জিনিস আমরা করবা চলা হে যদি কেউ আমি দেখো আমাকে ঝাড়খণ্ডে আমাকে বাংলালে কোন সময় উড়িষ্যা বাটেও আজ তো আমাকে আসামে একটা ফোন আইলাহি তো আমার তো মানে ডিসেম্বরের 13 তারিখ পর্যন্ত তো আমি এসেই লাগাতার বুকাই হোক তো কেসে কইকে যাই পারবনি মেন তো কোন ঠিক যে ঠিকটা যাইও উঠিনটা আমি দেখে লাগবাইও যেদিনটা লোক মানে ঘাটে উঠে লাই যা ওদিন মেহরা রুবিলা কান্দি কে ঘাটে উঠো তো হিলে পিলা কান্দো কোনো नहीं কান্দো হেলো ঘাটে উঠে লাই গেলে কান্দিয়া नहीं लो কান্দিয়া তাহলে জানি রাখারে বাছারা উর্মিরা রিজ রং ফুর্তি আমোদ সব খতম হয়ে গেল হন একমাত্র বাঁচল হয় সেটা কান্দনাটা একমাত্র বাঁচল হন কান্দনাটা मतलब কুর্মীরা পর কাঁদা ছাড়া কোনো গতি নাই কাঁদা ছাড়া কোনো অব্যাহতি নাই তাই আজ আমরা কে বুঝে দরকার যে কাঁদাটাও এটাও রোহিঙ্গা নেই সেটাও কোনো সন্দেহ কেন বিহার গীতে কেসে থেকে যখন বিহার গীত ছাড়লা টুসুক গীতে কেসে থেকে যখন টুসুক গীত গাহেলা ছাড়লা তেসনে যদি আমরা কর যাত্রা গীত গাবো ওখরা যদি কেসো কান্দনা কর কেসেট বানাও তাহলে কি কান্দনাটা তো ছাড়ি দেবো কিনা গো তাই আমরা পর যেগুলা হেকি সেগুলা আমরা কে বঞ্চায় রাখে নাই তখন আমরা কর ওহ বেজাবি যা ওহ আমরা কর সারুন পর আমরা কর যাত্রী উড়া আমরা কর যেগুলা রহে হলে সেই গিলাকে তোরাতে ঘুরাই আনে তখন সেই গিলাকে আমরা কর মানে ঘুরিকে যে নামগুলা সারুন পূজা নাই ওকরাকে কোহান যে তোর মানে যখন সারুন পূজা হবে আর কুর্মালিক যে সঙ্গে নেগাচার খোদড় নিয়ে হেলে আমার লোকে জানতা আপন সংস্কৃতিটা বাঁচি রহতো তো সংস্কৃতিটা না বাঁচলে ভাষাটা না বাঁচলে ধর্মটা না বাঁচলে তুই বাঁচি রহি কেউ তোর বাঁচার মরা সমাজ হয়ে যেত বাঁচি রহিকে কোনো দাম হেত নেই যদি ধরি রাখে কাপড় ঘরে একটা বন্দুক আহে এখন যদি গুলিটি না রহে বন্দুকটা যেসব কোনো কাম নাই যদি কাপড় ঘরে একটা টর্চ লাইট আহে আর যদি তোর ব্যাটারিটি না রহলো হেলে যেসব তোর টর্চ লাইটের কোনো দাম নাই যদি কাপড় ঘরে একটি দিয়াশল আহে আর যদি তোর কাঠি গিরা না রহলো তাহলে যেসব দিয়াশল মাচিস্টের কোনো দাম নাই যদি কাপড় ঘরে মরিচ আহে উঠে যদি তোর ঝাল না লাগলো হেলে যেসব মরিচটার দাম নাই যেসে কুড়মি হেঁকে যদি তোর কুড়মালি ঢাকি কুড়মালি চারি আর কুড়মালি যদি ধর্ম যদি না বাঁচানো পারলে তাহলে সেই ভক্তি দিয়ে আসলের মতো আপন ভাকি আপন চারি আপন ধর্ম বাঁচাই রাখবে ধর্ম পাইতে যেটা সেটা আমরা প্রকৃতি পূজারি আমরা গড়িকে কোনো ঠাকুর দেবতা নাই রে বাচ্চা আমরা মূর্তি পূজা করিও নি আমরা হলিও প্রকৃতিক পূজা আমরা আকৃতিক পূজা করিও নি কুড়মিরাকর পূজা হলেন অন্তরে অন্য লোকে করো সেটা হলে তোর মন্তরে কুড়মিরাকর পূজা হলে আকৃতিক নাই আমরা তোর হলে প্রকৃতিক গড়িকে কোনো ঠাকুর দেবতা পূজা করো নাই যাই হবে তোহরাকে যাকরা গড়লা হোক মতলব মাই বাপে তোরাকে গড়লা হোক আর মানে বহু তোরাকে কোন বহু কেসে কইকে হেলে সোয়াই দিল হাসিলু তবে তোরা বহু বলো তাহলে কোন গড়ল বহু আর পুতহু কোন গড়ল শাশা শ্বশুরে এ পঞ্চদেবতা পূজা করবে এ পঞ্চদেবতা পূজা করলে আমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী একাদশী কোনো পরে তোর দরকার নাই কাহু যাইকে ধান তীর্থ কাহু যাইকে দান দক্ষিণা করে দরকার নাই আর এ পঞ্চদেবতার যদি তুই সেবা না করিস আর যদি তুই মাসে মাসে তুমি যদি উপাস দেখিস উপাস দেখে কোনো ধর্ম হেত নেই ডাক্তার কই দিত যদি তুমি বেশি উপাস দেশি তবে হেলে তোর পেটে গ্যাস হেত তারপর বাদে গ্যাস্ট্রিক হেত তারপর বাদে আলসার হেত তারপর বাদে ক্যান্সার হেত আর ক্যান্সারের কোনো অ্যান্সার হেত নেই উত্তর দিকে মাথা দক্ষিণ দিকে ট্যান করে হেত তারপর জন্য জানিল
পূজাটা ছাড়িয়া না লোকের দহর ধরিকে লোকের পূজা করা যায় কবে আপনটাকে সে কইকে চিন তোরা পূজায় যে ঠাকুরটা যে দেবতাটা তুষ্ট হতো জানি নেবে এটা আমার কি আর যদি তোরা পূজায় যদি যেটা তুষ্ট নিয়ে এলো জানলে যে এটা আমার লহি কেশন তোরা যদি ছাগল হব করলে পাশ দিকে আসতো তোর যদি খুখড়ি হব তি করলে দৌড়ি আসতো তোর যদি হাসে বউ গেড়ে গেড়ে করলে বাংলা লোক ঠিক আসতো লোকের ছাগলকে যদি কশ্চিন হতো নিয়ে আসতো তো তোর ঠাকুর কোন গিলা না তুই এখন যাত্রা কিনে দিয়ে হাত না কোনে গেলে তখন কোনে করে দিল কোনে করলো নিজে করলে আচ্ছা যেদিন তখন গরম পূজা করলে কোনে করে দিল বীজ যেদিন তখন মানে বীজ বাহির করলে বিহন বাহির করলে ওদিন কোনে চর্চা করে দিল নিজে করলে এরকম যত আমার পূজা আই যেসব কাইলে পাইলালি আমরা করছি না বন্ধ করো তো ওইটা কোনে করো পূজা বসে পূজা কোন করে বলছো হ্যাঁ বামন পুরোহিত তো নাই তাহলে হেগিলা তোর আমার একটু অন্য অন্য পূজা যখন করে যাবে তখন অন্য লোকের দরকার হতো তখন জানলে যে এটা ক্ষেত্রে হেঁটে এটা আমার আরো আচ্ছা না না আচ্ছা আচ্ছা এখন বিরতি नहीं है तब এই মাঝে हमारे आसाम में दादा मानिकलाल दा आइला है ओखरा कोला की प्रोफेसर साहब के हमें को सब ई करबे सम्मान देबो एकदम 1 मिनट तो आवाज विनोद बिहारी मातो स्टेडियम বা খেলটাড়ি আমরা কুড়বালি ব্যবহার কুড়বালি শব্দ যেটাকে কই এই জায়গায় আসাম উড়িষ্যা পশ্চিম বাংলার झारखंड विभिन्न जायगा से आज मानगढ़ बुधगढ़ यदि क्यों प्रिंट मीडिया से आए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यदि क्यों आए हैं और विभिन्न माध्यम वाला यदि यहाँ आए हैं तो सबके संबोधन करिके हमें किछुटा निजे लेके किछुटा समाज लेके और जे हमरा समाज भविष्य निर्धारण लेके शुद्ध भारतवर्ष नहीं भारतवर्ष बाहरों जे लोग हमरा कुर्मी आंदोलन के सपोर्ट करत और अखानी काज करत सब कथा दिला अनेक चेष्टा करब तबे हमें एक तरफ किने आग्रह करब एकटू कथाबार्ता यदि कम करे पारिया और माइक वाला विशेष करी के टुंग टांग माझे दिशा ना करिया एटा हमर एकटा विनय रत हमर घर लगी गाँव भद्र पेड़ाजारा थाना पड़ियाजारा थाना पेड़ाजारा थाना এখন কোথি ইংলিশ পিন্ডরা জোড়া কোথি পেড়াজারা আর জেলা বোকারো 1976 में हमें कुर्मी आंदोलन में जड़ित आई है और आज 2023 हो माना 47 बचर 2-7 बचर पर्यंत हमें कुर्मी आंदोलन जड़ित आई है और झारखंडे जितना कुर्मी संगठन बनला है सब कुर्मी संगठने हमार योगदान आही सिर्फ एक छाड़ी के जेटार नाम है कुर्मी क्षत्रिय महासभा ओहटा बात देके प्रतिटी
কুর্মী সংগঠনের সঙ্গে আমি জড়িত ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট রহলে অবশ্যই আমি শুরু সেইটা মানিয়ে সব লোক গিলা ফ্রন্টে আইতে কাজ কর, কিন্তু আমরা নি এরকম লোক যে লোকগুলা পেছুই স্টেজের পেছুই আইতে কাজ করি। সম্প্রতি এখন রাঁচি ইউনিভার্সিটি से हमें एमएससी पीएचडी कर लिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जखन आई दिए बाटाईते तखन इठिने हमें रिसर्च गाइड लिए माने हमर अंडारे ভিতরে তখন পিএইচডি আর এমফিল করে লাগে। তারপর পরে যখন বিনোদ বিহারী মাহাতো ইউনিভার্সিটি বললে সেই विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी हमके खेल मंत्रालय भारत सरकार रे तरफ से नेशनल सर्विस स्कीम प्रोग्राम ऑफिसर हमके एक नेवता दे सेटाई हमें जॉइन कर तक सुनील दत्त जो सिनेमा एक्टर अहेर अलय मंत्री ताकर परे भारत सरकार पेरियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु যেটাকে সাধারণত আমরা ম্যাড্রাস কইয়ে ভারত সরকারে উঠিনে আমাকে পার্মানেন্ট রিসার্চ গাইড কইকে ঘোষিত করল। বিনোদ বিহারী মাহাতো ইউনিভার্সিটি আইন করে বর্তমানে আমাকে চাষ কলেজ চাষেকর প্রিন্সিপাল ভারো ভাট্টা মাথায় দিল্লি। এখন আমরা দায়িত্ব গিয়া অন্যরকম যেটা সাধারণ লোকে ভাবত তা করলে একটুকু অন্যরকম হবে। এক তরফ আমরাকে দেখেলাই হয় সরকারকে, এক তরফ আমরাকে দেখা হয় সমাজকে, আর এক তরফে আমরাকে দেখা হয় নিজের ব্যক্তিত্ব। এই তিনটাকে কোঅর্ডিনেশন করকে আমরা চলিয়ে বা চলার চেষ্টা করি। এখন কথাটা উঠো এ মুলকি কুরমালি ভাখি চারি আখড়া ए मुल्की माने कौन शब्दटा हो माने पूरा जतना धूप तक को कुर्मी आई है बा आई है সেইটাকে আমরা নি কই কুর্মী মুলুক বা অঠিনলে শব্দটা ওই কুর্মী মুলকি। একর পরে ওই কুরমালি কুর্মী যে উৎপত্তি, কুর্মিক যে আচার, কুর্মিক যে বিচার, কুর্মিক যে সংগঠন আর কুর্মিক যে ধরন এইগুলাকে আমরা একটা শব্দ ইন্ডিকেট করিয়ে সেটা হলে কুরবান। তারপর পরে ওই ভাখি, ভাখিটা এখন নিশ্চিত করে 1981 রাঁচি ইউনিভার্সিটি से शुरुआत हुई। এখন झारखंडे प्राय सभी यूनिवर्सिटी शुरुआत हल गला है अल्प বা কম হিসাবে, কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটি একদম পূর্ণ রূপে এখনো কুর্মালি ভাষা পড়া শুরু নেই এলাই, সেটা হলে নীলাম্বর পীতাম্বর ইউনিভার্সিটি পালামো। কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরে আমরা কোন জায়গায় ঝাড়খণ্ডে কুর্মালি ভাষাটাকে অতনা नहीं बढ़ावा पालिए যেটা গত 10 বছরে আমরা বেঙ্গল এখন যতনা কুর্মী আহাত অখরালি যেটা সরকারের পাশে পাওনা বা দাবি রাখরলা সেটা প্রায় যতনা অখরালি সভ্য দুনিয়ায় আগু বাড়ে গেলা অতনা এখনো পর্যন্ত আমরা नहीं पहुंचे पारला। है कारणটা कौन थिने लुकाया है এটাকে আমরা কে ভাবে লাই। এখন কুরমালি, কুরমালির পরে আই গেলে ভাখি। এখন যে ভাখি যেটা হলো সেইটাকে আমরা নেই কই ভাষা, ইংলিশে কই লিটারেচার। একটা শব্দ আই বলি আর একটা শব্দ আই ভাষা মানে ভাখি। যতনা দিন পর্যন্ত একে অপরের সঙ্গে যেটাই আমরা নিয়ে কথা কইয়ে কিন্তু লিখিয়ে নেই সেইটা বলি তক সীমিত রয়ে যায়। আর যখন বলিটাকে আমরা লেখা শুরু করে দিয়ে, কারণ লেখা গেলে গ্রামারের বা ব্যাকরণের দরকার রাখো,
কিন্তু বলিটাই ব্যাকরণের দরকারটাও রাখো কিন্তু কম, কিন্তু যখন লেখে যাবে তখন ওটাই ব্যাকরণের দরকারটা বেশি দিবে। তো ব্যাকরণ যখন করল যা বনাও যাতে তখন কিন্তু এখানে বহুত কিছু দরকার রাখো। আর আমরা ব্যাকরণটা না বনার কারণে পারল কারণে আমরা ভাষায় পরিণত নাহি করে পারো, কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা শুরুয়াত করলিয়ে। আর তোরাকে খুব সুন্দর একটা খবর দিই যে সিধু কানু ইউনিভার্সিটি ডক্টর সনত কুমার মাতো ম্যাথমেটিক্স হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু ওই একটা চিন্তা করলাই যে এই ভাষাটাকে স্ট্যান্ডার্ডটা কোন রকম বাড়ানো যায়। তো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ কুড়মালি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাকে लेके সেমিনার রাখলা, এক স্টেপ আগু बढ़ाई দিলে। এটা কিন্তু ঝাড়খণ্ডে আমরা কোন ইউনিভার্সিটি বা উড়িষ্যার কোন ইউনিভার্সিটি আমরা এটা স্টেপটা লেল নাই কি, যে স্টেপটা বেঙ্গলে এখানে লেলা। এখন যে ভাষিটাক কথা हो ई भाषिटाक लेके हमें आगू दिके कह ताकर परे आओ होय चारी। चारी माने कि ना होय आचार शब्द से आओ होय चार से आचार माने कि ना होय एक नियम। कोन नियम? समाज एक नियम, धर्म एक नियम বা সমাজ গোষ্ঠীকর নিয়ম। তাহলে এখানে একটা জিনিস আমরা দেখে পাও আর একটা শব্দ ওই কিনা আখড়া। আখড়া কোনটা কহে যায়? এখন একটা ব্যানারে আমরা দেখলি হোয়াটসঅ্যাপে কুড়মি কর প্রতিটি গাঁয়ে আখড়া আছে। এ আখড়াটা শব্দটা কন্টিনিউ মানে যেখানে আইকে লোকগুলা একসঙ্গে বসতা বা একসঙ্গে দাঁড়াতা তারপর পরে একটা যে জায়গায় যে নির্ণয়টা লেতা সেই নির্ণয়টা সবে কর্মী আমরা স্বীকার করবই বা নাই করবই সেটা প্রতিটি আখড়ায় সেটা বিবরণ বা বিশ্লেষণ হতে। বিশ্লেষণ হেল করে আমরা সেটাকে স্বীকার করবই বা নাই করবই। যদি স্বীকার করলি তখন কর্মী মূলকে আমরা ওটাকে লাগু করব। তাহলে এখানে আমরা দেখে পাবো মুলকি কুড়মালি ভাটি চারি আখড়া এটা এরকম একটা সংগঠন নাম से आवो যে সংগঠনটা চেষ্টা করা হয় যে কুড়মি কর যতনা ডাইমেনশন গিলা है সবে ডাইমেনশন গিলা এক জায়গায় আমরা জমা করার চেষ্টা করে। একর জন্য মুলকি কুড়মালি ভাটি চারি আখড়াকে আমরা বহুত বহুত ধন্যবাদ দিই। একর পরে आओ এখানে एक कुड़मालिक लेके हमरा नहीं कि ना एकाई भावो ये कुड़मालिक लेके नहीं तोरा भूल करो यदि तोरा भावो कि झारखंड बेंगल उड़ीसा और आसाम लोग गिलाई कुड़मिक लेके भावत किंतु हमरा नहीं जितना भावो ये हमरा नहीं शरीर देके सेटाके मदद जरूर करो किंतु माथा देके मदद यदि केउ करो तो डॉक्टर करीम ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश मुसलमान किंतु कुड़मिक लेके आर्टिकल छपा वैसा है नेशनल जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल। द्वितीयत पाकिस्तान और बलूचिस्तान नामे जायगा है डॉक्टर सिराजुद्दौला बलूच ओई कुड़मिक लेके पढ़ोसा है लेखोसा है इंटरनेशनल पेपर अनोसा। एक जन्य এখন তোরা শুনলা যে চন্দ্রযান গেলে চাঁদে পৌঁছলে নামলে সেটাকে পাঠাওলে কোনে ভারতের একটা বৈজ্ঞানিক সংস্থান যেটাকে কহল যায় ইসরো। সেই ইসরো আয়ে ডক্টর মঙ্গল মাতো সিংভূমে গিদর দেখো যে একদম দুবলা পাতলা হাইট ওর 4 ফিট 9 इंची 5 ফিটও নয় কিন্তু কুড়মালিক লিখে যতনা ভাবায় आज पर्यंत हमें कुड़मालिक लेके भावने वाला लोग बहुत कम और कम देखो ये डिवोशन लेके किंतु हमरा नहीं सब लोग ओकरा के जानिए ही नहीं। किछु लोग कम प्राय प्राय 17 लोग जे 17 लोग के हमरा नहीं क्यों नहीं चिनिए
কিন্তু অখরানি যে কুড়মালি কাজটা করত সেটাই আমার আশা লাগাইছে বেশি নেই 25-30 বছরের ভিতরে কুড়মালি কুড়মি আর কুড়মালির যে মেগা চারটা হয় এই মেগা চারটা আমরা বিশ্ব পটলে পৌঁছাবার পারো। এখন জায়গায় জায়গায় আমরা নি করো করম ডহ চাষে হই রামগড়ে হই সোহরাই এখন জিটি রোডে পেরালে সোহরাই একর পরে জামশেদপুরে আওয়াতে সময় আওয়াই টুসু হাজার হাজার নাই লাখ লাখ লোক রোডে নাভিকে প্রদর্শন করা হয়। এটাই প্রেস মিডিয়া বা বিভিন্ন মিডিয়ায় আমরাকে পুছল যায় যে যে আখড়াই এগুলা সীমিত রহলে করম করমটা আখাক লাগে কিন্তু এটা রোডে কাহে আও শহরটাও গাঁয়ে ঘরে লাগলে কিন্তু এটা রোডে কাহে আও টুসুটাও ঘরে ছাপাইকে নদী লেই যাইকে আমরা নি সেইটাকে ভাষাও পেলিয়ে কিন্তু এই টুসুটা রোডে কাহে আও একটা যচ্ছ প্রশ্ন আমরা কাছে উঠাও প্রেস মিডিয়ায় কিন্তু সঠিক বিশ্লেষণ সঠিক জানকারি অভাবে আমরা সেটা কাউন্টার ঠিকভাবে নাই করে কিন্তু আমার সমাজ কুড়মালি কুড়মি আর কুড়মালি এরকম একটা সুন্দর সমাজ আজ কাহে রোডে লাভ এটাকে ঝামেলাই হেতে কাকে ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাঁচি সিআরআই কলকাতা আর সিআরআই উড়িষ্যাকে জানালাই কাহে যখন ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট রিসার্চ করে আওয়াই কুর্মিক লইকে কুর্মিক আচার বিচার ব্যবহার ধর্ম কোনটা তখন ওই কিনা আধার বানাওলে ওই আধার বানাইলে লই কিনা আমি কাগজে যেটা পড়ব সেইটাকে আর কিছু কিছু লক্ষিণে যাইকে পুছিল কিন্তু আমরা যে ওই কালেকশন করে লাগলাই কালেকশন করার সময় আমরা নি যেটা যখন করিয়ে তখন সেটা রিসার্চ পারফেক্ট তখনে ওই যখন ও আওতাই আর আইকে আমার সঙ্গে দাঁড়াইকে সেই ফরজটা করতাই তবে সেটা যেটা ফাইন্ডিংটা ওটাই সেই ফাইন্ডিংটাই পারফেক্ট দাঁড়াতে কিন্তু এটা কোন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে নাই করলে ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট রাঁচি যখন করে তখন আমার মাথায় গিরোড়ি ধানবাদ গিরিডি হাজারিবাগ রামগড় কিন্তু সেটাই অসন্তুষ্টি প্রকট করলো ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এটা স্বীকার নাই করলে আর করলে কিনা একরাত যে সংস্কৃতিটা সে সংস্কৃতিটাই হিন্দুয়াইজ হয়ে গেল আমরা সমাজ এক লোকে তখন ধরল ঠিক তো ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রিসার্চ ডাইরেক্টর লাগে সোমা মুন্ডা আর প্রকাশ রাও তুই যদি কুর্মিগুলিকে সঠিক না লেখিস তো ভুল লেখার তোর অধিকার নাই তো আমার সংস্কৃতি যদি হিন্দুয়াইজ লাগি তখন আমরা লোকে করলা ঠিক আছে ওই সংস্কৃতি গবেষণা করে হয়েছে রিসার্চ করে হয়েছে তখন আমার কুর্মি ভাই বুঝলা তবে একর পরে লুকাই ছুপাই নাহি আখড়াই নাহি একর পরে রোডে আমরা লড়াইকে দেখাই দেবো আমার ভাষা কোনটা আমার সংস্কৃতি কোনটা আর একে আমরা রোডে না ভলাই আপনার লোক গিলা আমরা কোনো সুখের জন্য নাই না বলাইয়া চ্যালেঞ্জ দিয়ে আমরা সরকারকে বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার ঝাড়খণ্ড সরকার উড়িষ্যা সরকারকে যে ভাষা আর সংস্কৃতি যদি তোর জানে কাহ তো লাখ লাখ লোকের মাঝে লড়াইকে আইকে তুই সেইটা অবজার্ভ করিকে তাকর পরে লেখা তাহলে আমরা কত বড় চ্যালেঞ্জ দিলাই এই সরকারকে আজ জানিয়া করানি এই যে জিটি রোডে প্রদর্শনটা হেলে এই জিটি रोडটা বেঙ্গল से लेके अफगानिस्तान तक को गया और डॉक्टर सिराजुद्दौला बलूची हमके बलूचिस्तान से फोन करके कोई सा सर क्या जरूरत पड़ गया इतने लोगों को
भूख में, इतना धूप में रोड में खड़ा करना पड़ा। हमने कि ये सरकार हमको चैलेंज की थी और चोरी छिपे आकर करके रिसर्च की थी विदाउट एनी पार्टिसिपेशन, और तब हम लोग इस बात को समझ करके आए, समझे, और हम लोग ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि तुम आकर के चोरी और छिपे 10 और 5 आदमी से तुम डेटा कलेक्शन करते हो, तो डेटा ही अगर कलेक्शन करना है तो आओ जीटी रोड। और आपका जीटी रोड में जो प्रदर्शन हुआ सिर्फ अब तक नहीं रहा, ये पहुंच चुका अफगानिस्तान तक, ये पहुंच चुका आपका BBC लंदन, वहां से ब्रॉडकास्ट किया गया आपका। अब बात होता है कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति, समय का अभाव जरूर है और थोड़ा आना जाना कम कीजिए काइंडली। हम कुछ गंभीर बात आप लोगों के बीच में उठाएंगे। जो अभी हम 17 आदमी का नाम लिए, वो लोग सामने नहीं आएंगे और उन लोगों को आने भी हम लोग नहीं देंगे, आएंगे भी तो हम लोग आने नहीं देंगे। डायरेक्टर के हिसाब से काम करें, नाचने वाले हम लोग होंगे, अरेस्ट होंगे हम लोग, आप लोग अंदर में रह करके काम करें। अब बात होता है ये कुड़मी ट्राइब अभी विभिन्न माध्यम से, कभी भूमिज लोग सिंहभूम में, रांची में उराव लोग, कुछ कन्वर्टेड शेड्यूल ट्राइब लोग, विभिन्न तरह का आरोप और प्रत्यारोप कुर्मियों के बीच में रख रहे हैं। हम लोग मगर शांति से सुन रहे हैं, आपका कितना बात है, कितना छुपा हुआ है, उगल ले। हम लोग शांत भी हैं। अगर झारखंड को अलग करने के लिए 79 कुर्मियों ने अगर बलिदान दिया है, तो अब कुर्मी कोई बलिदान नहीं देगा। और अगर अब बलिदान देने का होगा तो अब हम बलिदान अपने आप को नहीं देंगे, बल्कि अब बलिदान हम लेंगे। बिना इतिहास को देखे हुए, बिना एंथ्रोपोलॉजी को देखे हुए, बिना सोशियोलॉजी को देखे हुए लोग गैर तथ्यात्मक बात को सामने ला रहे हैं। एक आदमी रांची संजीवेश कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर भागला इंग्लैंड से PhD करके आए हैं, बोलते हैं अंग्रेज ने यहां ला करके कुर्मियों को नील के खेती के लिए बैठाया है। इट इज हिज स्टेटमेंट इन पब्लिक डोमेन। हमको तो आश्चर्य लगा, इतने अच्छे कॉलेज में, इतने अच्छे जगह से PhD करके आदमी अपना बायस हो करके ऐसा बात क्यों बोले। आज भी कोई कुर्मी किसी से अगर पूछा जाए तो नील संबंधी खेती के लिए जमीन कैसा चाहिए, बीज कैसा होता है, खाद कैसा चाहिए, किसी को कोई पता है? कोई पता नहीं। कहां से वो ये डेटा ला करके परोस रहे हैं? डेटा कहां से ला रहे हैं? ये गुमराह करने का, तथ्यात्मक गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। हाँ, अब यहां पर आते हैं, जब इस समय CRI में कलकत्ता में डिस्कशन के लिए गए थे लोग, उस समय देवघर कॉलेज के डॉक्टर सुधांशु जी ने एक प्रश्न उठाया, आपने जो CRI बंगाल का रिपोर्ट बनाया है, वो रिपोर्ट पार्टिसिपेशन रिपोर्ट है या नॉन पार्टिसिपेशन रिपोर्ट? आपको जान के आश्चर्य होगा, बंगाल के वहां बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी थे सब माथा गाड़ लिए। अब अगर मान लेते हैं यहां पर मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग को कोई आदमी पेपर में पढ़ लेगा या सुन लेगा, वो सही बात बोलेगा कि जो आदमी इसमें हिस्सा लेके जाएगा वो बात सही बोलेगा? तो जब कोई रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में आपने क्या हिस्सा लिया,
अगर कर्म के बारे में बोल रहे हैं तो कर्म पर्व में आपको कितना दिन का उपवास किया जाता है, कब कर्म थापा जाता है, कब कर्म भाषण होता है, शुरू से लेके अंतिम तक आप क्या बैठ के देखे हैं? और अगर देखे नहीं है तो इसका मतलब अपूर्ण रिसर्च है, और अपूर्ण रिसर्च के अनुसार रिकमेंडेशन चला जा रहा है। मगर एक ही चीज का खाली कमी था, आपको जान के खुशी होगी, भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट में आज भी कुर्मी अनुसूचित जनजाति में है। कैसे कह रहे हैं? अभी जातीय जनगणना 1931 में पब्लिश हुआ था, ब्रिटिश सरकार के समय में, और जब उसका 100 साल पूरा होने को है, 2031 में पूरा होगा, तो उसके पहले भारत सरकार एक फिर जनगणना की, जातीय जनगणना 2011-12 में। और 2011-12 में आप लोगों के पास जो भी टीचर हो जो इस जनगणना को संपादित कर रहे थे या संचालित कर रहे थे, उन लोगों को टैबलेट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, और उस टैबलेट में एसटी लिस्ट था, और उस एसटी लिस्ट में 9वां नंबर पर कोरवा था और 10वां नंबर पर कुर्मी था, KUDMI, और एक था कुर्मी BC1 में था। जब मेरे पास ये सम लेके आया तो हमने कहा कुर्मी है, तो वो कुर्मी टाइप किया तो आया BC1। हमने कहा आप गलत टाइप कर रहे हैं, आप उसमें टी टाइप कीजिए, तो आया कुर्मी। और जब कुर्मी आया तो एसटी लिस्ट आ गया, और एसटी लिस्ट में 9वां के बाद 10वां में कुर्मी था, और मेरा दर्ज हुआ एसटी लिस्ट में। और जो भी लोग उसमें दर्ज कर रहे हैं कुर्मी नहीं, जो भी लोग दर्ज कर रहे हैं कुर्मी, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना पारित हुआ 1,40,000 रुपया का, और जितना भी लोग कुर्मी उसमें दर्ज कराया था, सबको टोटल को 1,40,000 रुपया मिला, और उन लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाए। हम लोग अपने आप को कहने में शर्म महसूस करते हैं कि हम कुर्मी हैं, अपने को कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम कुर्मी हैं। कुछ लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, मगर आप जिस दिन एक शब्द को पकड़ के चलेंगे कुर्मी, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं। मेरा खथियान, जिसको बांग्ला में पर्चा कहा जाता है, इंग्लिश में लैंड रिकॉर्ड कहा जाता है, बोलता है कि उसमें कुर्मी लिखा हुआ है। मगर 2012 ईस्वी में यही रघुनाथ, ये थे आपका ये झारखंड का चीफ मिनिस्टर, सॉरी क्या नाम है, रघुवर दास। ये रघुवर दास ने 2012 ईस्वी में एक चिट्ठी निकाला, जिसमें गवर्नर से साइन करके नोटिफाई किया गया। क्या नोटिफाई किया गया? कि झारखंड के कुर्मी उसमें लिख रहा है कुर्मी ब्रैकेट में महतो कुर्मी से जाने जाएंगे। तो कंफ्यूजन तो खत्म हो गया। हम लोगों ने क्यों ये दबाव डाला कि यहाँ कुर्मी शब्द को जोड़ा जाए? इसीलिए दबाव डाला था कि अभी आपका BC1 का सर्टिफिकेट बनता है कुर्मी कुर्मी महतो, और ब्रैकेट में कुर्मी महतो, ब्रैकेट में महतो। आज नहीं कल कुर्मी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होगा। इसमें आप लोग आज यहां से मैसेज लेके जाइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? इतना बड़ा दावा एक
कॉलेज का प्रिंसिपल आप लोगों के बीच में बोल करके जा रहा है, इसीलिए जा रहा है। हम लोगों ने कुर्मी शब्द को क्यों वहां इंट्रोड्यूस करने के लिए बाध्य हुआ, लिखा हुआ था कुर्मी महतो। तो जो लोग मेहता टाइटल लिखे हैं, जो लोग ओहदार हैं, जो लोग चौधरी टाइटल लिखे हैं, वो लोग तो निश्चित तौर पर छूट जाते हैं, जबकि हमारे ही गोष्ठी के हैं। तब हम लोगों ने वहां सोचा इसका एकमात्र विकल्प होगा कुर्मी महतो ऑब्लिक कुर्मी कर दिया जाए। कुर्मी अगर कर दिया जाता है तो बाकी सबसे भिन्न हो जाएगा, और उस दिन जिस दिन कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में घोषित कर देगी सरकार, उस दिन पटाक्षेप हो जाएगा। इसमें कोई ओहदार, कोई चौधरी, कोई आपका मेहता नहीं छूटेगा, सब अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होगा। मगर हम लोगों के बीच में अंतर्द्वंद काम करता है। हम लोग सरकार के द्वारा निकाला गया चिट्ठी को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और जो पेपर में छपा जाता है उससे हम लोग रूबरू भी नहीं होते हैं। ये हम लोगों का कमी है। तो आज यहां से एक बात निष्कर्ष में लेके जाइए, हम कुर्मी महतो थे, हम खाली कुर्मी नहीं थे। मगर 2012 के बाद हमको कुर्मी बोल करके राज्यपाल के द्वारा घोषित किया जा चुका है। इसीलिए यहां से मैसेज लेके जाएंगे, अब मेरा बोली कुर्मी के लिए निकलेगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा, अभी यहां बात होता है कि ये लोग जो रिसर्च करने के लिए यहां आया, अब थोड़ा गंभीरता की ओर पहुंचिएगा आप लोग। हम मानते हैं अब जो बात बोलने जा रहे हैं वो आम आदमी समझ नहीं सकेगा, और हम वही चीज को हम लोग नहीं समझ सकेंगे। ये कोई बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में वार्तालाप करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब अभी तक उड़ीसा सरकार, बंगाल सरकार और झारखंड सरकार जो रिपोर्ट भेज के दी, चाहे टीआरआई चाहे सीआरआई, वो रिपोर्ट एक ही चीज को दिया है क्या, कि ये लोग का पुजारी ब्राह्मण होता है। मगर अभी तक जितने भी लोग यहां पर बोले, सबने एक शब्द का प्रयोग किया, वो था बामन। ब्राह्मण नाम का शब्द हम कहीं नहीं सुने, किसी के मुंह से नहीं सुने। बामन, बामन शब्द सबके मुंह से सुने। तो ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग ब्राह्मण का पौरोहित्य को स्वीकार करके चल रहे हैं। ठीक है, ये बात कह रहा है कि, मगर क्या हम इस बात को स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कल हम खाली भावना में बह करके अगर चले जाएं तो होगा? देखिए, सरकार हमेशा नियम से चलती है, वो नियम से बाहर एक कदम पैर नहीं रखेगी, और एक कदम अगर उसका पैर बाहर चला जाएगा तो पूरा तहस नहस हो जाएगा सिस्टम। हम लोग कोई भी चीज को बच्चा के खेल के जैसा समझ रहे हैं। जहां गंभीरता का जरूरत होता है वहां हंसते हैं, और जहां हंसने की आवश्यकता होता है उस समय रोते हैं। यही काम करते हैं हम लोग। अगर हम कोई भी प्रोग्राम में कहीं पर जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं और मजा लेते हैं, तो उसको उत्सव कहा जाता है। उठकी के उठो है। क्या आज यहां हम लोग उत्सव मनाने के लिए आए हैं कि हम लोगों के चारों तरफ एक बोझ डाला जा रहा है, उस बोझ से हम लोग बोझ को हटाने के लिए यहां इकट्ठा हुए? समझना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा सा, जितना भी रिसर्च अभी तक किया गया, दीपक जी अब आइए थोड़ा सुनिए, गहराई वाला आप ही के लिए बात बोल रहे हैं। अब बैठिए थोड़ा देर के लिए। और ये पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है, और वो पेपर अगर पब्लिश होगा और जब मिलेगा, उस पेपर का कीमत 28,000 होगा।
शायद कोई नहीं खरीद पाइएगा आप लोग, मगर वो बात हम आज फोरकास्ट करके जा रहे हैं। सीआरआई बंगाल, सीआरआई उड़ीसा, टीआरआई झारखंड, ये जितना भी था, ये लोग सिर्फ कल्चरल एक्सपेक्ट को लेकर के प्रोड्यूस करने शुरू किया, रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। मगर कल्चरल एक्सपेक्ट जो होता है, सांस्कृतिक एक्सपेक्ट जो होता है, वो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और पात्र के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे मेरे यहाँ जितिया के दिन में कौन बजा रहा है महादेव, लोग इसी तरह से उत्सव मनाइए। आप लोग इतना गंभीर से गंभीर आप पर चोट बना रहा है और आप लोग उत्सव मनाइए, माधुर बजाइए। अब यहां पर अगर जितिया के दिन में, मेरे घर में उपास के दिन में कोई अगर मर जाता है तो उसका वो त्योहार उस समय रहता है कि खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है। और फिर शुरुआत कब होगा? अगर फिर कोई जितिया आया, कोई साल, 10 साल बाद हो सके, 20 साल बाद, और उसके बाद अगर कोई उसी दिन अगर जन्म लेता है तो उसी दिन साल हमारा त्योहार लौट आता है। यानी एक ही त्योहार एक जगह पर एक दिन होगा तो दूसरे समय में, अगर मान लेते हैं कोई जगह पर, कोई गांव में जितिया नहीं हो रहा है, वहां पर डेटा कलेक्शन करके अगर लिख कोई दिया, कुड़मी लोग जितिया नहीं मनाता है, तो क्या ये सही है? नहीं है। तो कल्चरल एक्सपेक्ट रोज चेंज होता है परिस्थिति के अनुसार। अभी मेरे ही यहाँ इस सोहराई में एक आदमी का, मेरे ही कुश्ती का देहांत हुआ, तो हम लोग कोई सोहराई नहीं मनाया। हमने क्वेश्चन पूछा, अब ये सोहराई कब होगा? तो बोल रहे हैं कि पूछ महीना में होगा। तो वहां तो परिवर्तन हुआ, स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अब आते हैं, तब हम लोग सोचे कल्चरल एक्सपेक्ट में ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में क्यों ना हम लोग जेनेटिकल साइड में बढ़े। आप समझने के लिए तैयार होंगे दीपक जी। अब जब पार्शियली हम आपको बोले, अभी हमारा केस हाईकोर्ट कलकत्ता में है, हाईकोर्ट रांची में है, हमारे लिए लड़ रहे हैं डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश का आदमी, वो कोर्ट के लिए लड़ रहा है। और जान के आश्चर्य होगा, एक हियरिंग का उनका कीमत होता है 3 लाख, मगर उन्होंने कहा कुड़मी इतना बड़ा समुदाय है, इसके लिए आप लोग अगर पैसा दीजिएगा तो भी ठीक, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक, मगर हम केस लड़ेंगे। तो आप ज्यादा चिंतित हैं कि संवैधानिक अधिकार से इतना बड़ा समुदाय को जो वंचित किया गया है, उसके लिए अखिलेश श्रीवास्तव अकेले कोर्ट में खड़ा हो रहा है। और आश्चर्य लगेगा, जिस दिन हियरिंग होता है, उस हियरिंग के दिन में हम लोग कोई नहीं पहुंचते। 2 दिन ऐसा हुआ जिस दिन हमारा प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा। आरोप प्रत्यारोप अलग बात है। अब हम लोगों ने शुरुआत किया एक नया तरीका। आज का जो युग है, ये युग वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान भित्तिक आप रिसर्च का मांग करता है। अब इसके लिए ये भारत में जो विभिन्न तरह के जो समुदाय हैं, ये समुदाय देखने में तो अलग होते हैं, भाषा में भी अलग होते हैं, शारीरिक गठन में भी अलग होते हैं, तो क्या इनका जीन भी अलग है? और अगर जीन अलग है तो यही एक बिंदु होगा जिस बिंदु में भारत सरकार को हम लोग परास्त कर सकते हैं। और इसके लिए रिसर्च होता है एक जगह पर, मॉलिक्यूलर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, वो सरकार का है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? कि सरकार इसके लिए कोई भी अनुदान देने के लिए तैयार नहीं है। खर्च करीब 60 लाख के करीब आएगा। अब तब इस परिस्थिति में वही जो 17 आदमी पीछे आपका काम कर रहे हैं,
उन लोग हम लोग एक साथ मीटिंग कर लेने के बाद पहुंचे कि ठीक है, हम लोगों को सरकार स्पॉन्सरशिप नहीं दे रही है, कोई बात नहीं है, रिसर्च तो करना है। तब हम लोग संपर्क किए बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट पैलियो बॉटनी लखनऊ का। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर चौबे का, एक ब्राह्मण आदमी, और डॉक्टर नीरज राय का, वो भी ब्राह्मण आदमी। वो दोनों ने स्वीकार किया इस पर हम रिसर्च करेंगे। और हम लोग चुने जगह कहां? बंगाल बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है बंगाली कल्चर से, और इंटरमिक्सिंग की संख्या ज्यादा हुई है। झारखंड में उससे कम है, मगर उड़ीसा में सबसे कम है। हम लोगों ने चुना और 800 आदमी का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। और जानते हैं ब्लड में ए ग्रुप, बी ग्रुप, एबी ग्रुप और ओ ग्रुप, 4 ग्रुप होता है। जन्म में जो ग्रुप लेके पैदा हुआ है, मरते दम तक वही ग्रुप रहेगा। इसको जीन लाता है और जीन चेंज नहीं करता। हम लोग 800 आदमी का ब्लड सैंपल कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद उसमें रिफाइनेशन शुरुआत किए, हम लोग फिल्ट्रेशन शुरुआत किए। फिल्ट्रेशन का बेसिस क्या रखे? ऐसा कुर्मी घर, ऐसा कुर्मी गांव जो गांव में आज तक सरकार का पदार्पण कम से कम हुआ है, यानी प्योर बचा हुआ। दूसरा, उसके घर में कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं किया हुआ, यानी दूसरे कास्ट में न लड़की गई है न लड़की आई है। प्योर वैरायटी में 800 में हम लोगों को मिला कितना? 179। आप मान के चलिए 180 एक कम। वो 180 सैंपल को भेजा गया, और उसमें दो चीज को हम लोग फाइंडिंग निकालना है। एक जीन होता है जो मां से बेटा और बेटी दोनों में जाता है, बेटा में भी जाएगा बेटी में भी जाएगा, और वो जीन को कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल जीन, एम से इंडिकेट करते हैं। और एक विचित्र का जीन हम लोगों को कुर्मी में मिला, वो उसका नाम दिया गया M31। दीपक जी अब समझ आगे बढ़े, M31। और ये M31 जीन जो हम लोगों को मिला, ये भारत का दूसरा कोई समुदाय में नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कुर्मी में मिला। आगे चल करके देख रहे हैं क्या, भारत का एक समुदाय में और हम लोगों को बाद में पेपर में देखने से मिला, और वो है अंडमान निकोबार में ओंगे करके एक जनजाति है, उसमें भी मिला M31। इसका मतलब ओंगे और हम लोग कभी न कभी एक वंशज से ही उत्पन्न हुए हैं, ये तो एक निष्कर्ष में आ रहा है। मगर एक जीन और होता है जिसको हैप्लोग्रुप कहा जाता है, और वो बाप से बेटा में जाता है, बेटा से नाती में जाएगा, बेटी में नहीं जाता है। वाई क्रोमोसोम का जो जीन है, हॉलैंड्रिक जीन जिसको कहा जाता है, वो जीन का रिपोर्ट हमारे पास नहीं आया है, हम लोगों के पास। वो रिपोर्ट किस दिन आ जाएगा, और वो रिपोर्ट में हम लोग अभी मुंह से बोलते हैं कि उसमें भी कुर्मी का विचित्र जीन मिलेगा, आशा रखते हैं। मगर प्रायोगिक सत्यापन का आवश्यकता है। वो जिस दिन सत्यापित हो जाएगा, तो जिस दिन हमारे पास जिस दिन आ जाएगा, उस दिन कोई भी आपका CRI TRI हो जाए, कोई भी रिसर्च स्कॉलर क्यों ना हो, ये बात को कभी खंडित कर ही नहीं सकता। और इमीडिएटली जैन एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े हुए हैं। भारत सरकार का हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, और उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वहां निष्कर्ष के तौर पर हमारे बीच में आएंगे इंटरनेशनल साइंटिस्ट। वो आएंगे डॉक्टर चौबे, और आएंगे आपका डॉक्टर नीरज राय, और वो आकर के वहां रेजोल्यूशन पास करके भारत सरकार में जब जाएगा, भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो ये इतना गहराई से लोग सोच रहे हैं आपके बारे में।
अब महादेव जी ज्यादा समय ले रहे हैं क्या आपका? आप आते हैं थोड़ा देर के लिए। हम क्यों ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आप आदिवासी नहीं हैं। अभी गीताश्री मैडम बोल रही है, सालखन मुर्मू जी कभी कभी बोल रहे हैं, और ये पेट्रोलाद के एक नीलकंठ सिंह मुंडा हैं वो भी बोल रहे हैं। मगर एक आदमी आपके लिए खड़ा हो रहा है और वो आदमी इतना समझदार आदमी है जो झारखंड के इशू के लिए अपना एमएलए से रेजिग्नेशन दे दिया था, वो था सूरज सिंह बेसरा। आपके लिए एक पैर में खड़ा है। अब अगर बात उठता है कि आप लोग कह रहे हैं कि लोग आदिवासी नहीं है क्योंकि इनकी भाषा अलग है और इनकी संस्कार भी इनका अलग है, तो हम पूछना चाहते हैं क्या मैडम गीताश्री उरांव, मिस्टर सालखन मुर्मू सर, नीलकंठ सिंह मुंडा सर, रामदयाल मुंडा फिर क्यों हमको लिख करके दिए थे कि इन लोगों को झारखंड ये कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना होगा? जवाब उनको देना पड़ेगा। रामदयाल मुंडा नहीं है। फिर एनी हीरो बिशप निर्मल मीन गौसनर कॉलेज के प्रिंसिपल, अभी झुंझुनू का बात उठा था, उसमें सब लोग आए थे और एक स्वर से सब लोग बोले थे कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना होगा। एक तरफ आप आकर के पब्लिक के बीच में कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करना होगा, यानी ये लोग आदिवासी हैं, और दूसरे तरफ में लिख करके भेज देते हैं कि ये लोग हिंदुआई होंगे। ये दो मुहैया साथ कैसे होगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहता है मैनिफेस्टो कि कुर्मी को हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करेंगे। तो हम अगर अनुसूचित ये आदिवासी अगर नहीं है तो आप सूचीबद्ध कैसे करने का रेजुलेशन लिए हैं? अरे एक सभ्य समाज में आप जी रहे हैं, हम भी एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। एक पढ़े लिखे आदमी का व्यवहार में परिवर्तन, इसका मतलब या तो वो लोग गलत बोल रहे हैं या तो आप लोग गलत बोल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि रिसर्च का जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो भी गलत सबमिट कर रहे हैं। अब लास्ट में, और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा क्लेम कहां से शुरुआत होता है? दूसरा, झारखंड अलग होने के पहले लाली कमीशन बना था, कमिटी ऑफ झारखंड मैटर। बूटा सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे और कमीशन कभी झूठ नहीं लिखता है, कारण कमीशन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के अधीन काम नहीं करता है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधीन काम करता है। और वो लाली कमीशन हमको क्या लिख करके दिया कि झारखंड आदिवासी बहुल झारखंड राज्य, जिसमें अनुसूचित जनजाति और गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो, ये कमीशन लिख के दे रहा है गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो। तो हमारा तो इतना ही मांग है, तुम रिपोर्ट में लिख रहे हो गैर सरकारी जनजाति कुर्मी महतो, तो उसी को हम तो खाली एक ही शब्द हटाना बोल रहे हैं आपको, गैर शब्द को हटा दो और सरकारी जनजाति घोषित कर दो। हमारी मांग तो इतनी छोटी सी है, और वो अगर हम गैर सरकारी जनजाति नहीं थे तो फिर उसमें लिखे क्यों आप? हम लोगों के जैसे पढ़े लिखे लोग को यहां आने का आवश्यकता क्यों पड़ेगा? सिर्फ इसलिए पड़ रहा है कि आप लिख रहे हो कुछ और कर रहे हो कुछ। ये तो कम से कम दोगलापन नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा आते हैं
आप लोगों को, हम लोग आदिवासी तो शुरू से हैं और जानते हैं हम लोग भारत भूमि में कब पहुंचे हैं, वही जीन के आधार पर क्या पहुंच रहा है जानते हैं? 70 लाख साल पहले, सॉरी 70,000 साल पहले अफ्रीका का कोंगो रिवर बेसिन का नाइजीरिया नाम का जगह, वहीं आदमी का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ। अभी तक जो रिकॉर्ड है, आगे हो सकता है ये रिकॉर्ड में परिवर्तन हो सकता है। और वहां आज से 70,000 साल पहले विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फटा, और उस ज्वालामुखी फट जाने से आदमी लोग चारों तरफ बिखर गए, और वहां से एक जत्था चला, एक दल चलने लगला। যে দলটা যখন আফ্রিকা এসে চলা 70,000 আগু, আর ভারতে ট্যাঙ্ক দিয়েছে 65,000 আগু, আর 65,000 আগু যে লোকগুলা আইর হলা অখরা করে জিনটা हमरा ভিতরে বাহারাইলা। তাহলে আমার ভারতে सबसे पहले हमें आदि बस्तु चला गया, और हमारे अंगे भाई जगला हाथ अखरा हमरा नहीं आदि बस्तु चला गया। और जो हमरा नहीं आदि बस्तु चला गया तो आदि बस्तु आदि बस्तु शब्दটা কুড়মালিক লাগে, এটাকে আদিবাসী কওতি। আর এহে আদিবাসীটার জন্য জয়পাল সিং মুন্ডা সংবিধান সভায় লড়ার হলাই, কিন্তু ডক্টর আম্বেদকর সেটার জায়গায় আদিবাসীকে না স্বীকার করি ট্রাইব করল। ঠিক আছে, ট্রাইব করল সেইটা 1985 আইকে শিডিউলিং হলে, তো হেলি শিডিউল ট্রাইব। এখন আগু তো আমাকে নোটিফাই অলরেडी कॉल করি তালকে রলাই 1901 जनगणना हमें आई है, 11 आई है, 21 से आई है, 31 से आई है, और झारखंड सरकार कैबिनेट पास करके पठाई दिले। 1938 ईस्वी तक के लोग जनजाति थे, आज क्यों नहीं है ये इसका कारण स्पष्ट नहीं है। और यही चीज को पॉइंट उठा करके डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने उठाया। अगर कुर्मियों को हटाया गया है उस सूची से, तो कौन कमेटी इसको रिकमेंड किया है, उस कमेटी का नाम दिया गया, हाईकोर्ट से मांग किया गया। भारत सरकार का जो वकील है, आज 5 हियरिंग हुआ है, 5 हियरिंग में वो टालते गया है कि ये कोई चिट्ठी हमको मिल नहीं रहा है, और कोई मीटिंग नहीं किया गया था, और कुर्मियों को वहां से छोड़ दिया गया है, हटाया नहीं गया है, छोड़ दिया गया है। अगर हटा दिया गया होता 1913 में, फिर हम कैसे आते? ये 2012 में हम कैसे आते अगर हट जाते तो? हाँ, राज्य विशेष का एक अधिकार है। कोई राज्य अगर किसी जाति को या जनजाति को अनुसूचित करना चाहती है, वो राज्य का विशेष अधिकार है। वो अगर यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का जो असेंबली होता है यहाँ पास करके अगर भेज देता है, तो केंद्र का इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी जगह फायदा उठा लिया ये लोग, ना हम स्टेट से भेजेंगे और ना ये लोग अनुसूचित जनजाति में हो। पूरा रिपोर्ट बंगाल सरकार ने बना लिया, और कमेंट और जस्टिफिकेशन 2 चिट्ठी होता है कि रिपोर्ट तो बना, उस रिपोर्ट पर आपका मंतव्य क्या है। ये मंतव्य देने से चुपचाप रह गए, और जस्टिफिकेशन का मतलब आप रिपोर्ट को पढ़े, मंतव्य दिए, और इसके बाद आप निर्णय क्या देते हैं, इसी को कमेंट एंड जस्टिफिकेशन रिपोर्ट कहा जाता है। और आज तक शुरू से लेके अंतिम तक बंगाल की सरकार कमेंट और जस्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं भेजने के लिए तैयार है। जिस दिन कमेंट और जस्टिफिकेशन रिपोर्ट वो भेज देगी, उस दिन फिर कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्ट पॉइंट पर वो लोग पकड़ा है। मगर अब दिक्कत होता है क्या, ये हम लोग समझते हैं ये हमारी समस्या सामाजिक है, मगर इस समस्या का निदान राजनीति से ही होगा।
ये भी हम आप लोगों को स्पष्ट कर दे रहे हैं। जब तक बंगाल का विधानसभा, झारखंड का विधानसभा, उड़ीसा का विधानसभा पास करके नहीं देता है केंद्र को, केंद्र सरकार सूचीबद्ध नहीं कर सकती। इसी पॉइंट को लोग पकड़ लिया है। अब मेरे जो एमएलए हैं, मेरे जो एमपी हैं, मेरा समस्या को सुनने के लिए या समझने के लिए तैयार ही नहीं। और अगर तैयार नहीं है तो विधानसभा में कैसे डिस्कशन करेंगे, लोकसभा में कैसे डिस्कशन करेंगे? तब वो लोग क्या करते हैं, दीपक जी को बुलाते हैं, महादेव जी को बुलाते हैं और इन लोगों से लिखाते हैं, अरे इन लोग लिख के दे देगा आपको, वहां जाके पढ़ दीजिएगा, क्रॉस क्वेश्चन जिस समय होगा उस समय आप क्या कीजिएगा, जवाब दे पाइएगा? नहीं जवाब दे पाइएगा। इसके लिए उन लोगों को बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज को, फैक्ट को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई जबरदस्ती कीजिए, हम ये कह रहे हैं तथ्य को देखिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, फैक्ट जब एक्ट बनता है तभी टैक्ट लागू होता है, यानी फैक्ट और एक्ट तब आता है टैक्ट। यहां फैक्ट अलग है, एक्ट अलग है, टैक्ट भी अलग है। इतना वैमनस्यता तो हम कहीं नहीं देख पाते और इसका एकमात्र कारण है हम लोग चुपचाप, हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, जबकि गंभीर होने का, गंभीरता का हम लोग को दिखाने का जरूरत था। अब थोड़ा देर के लिए हम एक आते हैं, हल्का सा सभी लोगों के बीच में बोले हैं हम, थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले रहे हैं, हम माफी भी मांग ले रहे हैं आप लोगों के साथ। कल हो सके आए चाहे ना आए। 1857 ईस्वी में यहां सिपाही विद्रोह होता है और सिपाही विद्रोह जब हो रहा है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में हो रहा है, इंग्लिश के विरुद्ध में नहीं हो रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध में नहीं हो रहा है। जैसे टाटा बिरला कंपनी है उसी तरह से कंपनी के विरुद्ध में लड़ाई हो रही है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लिख के दे दी कि भारत में इतने ज्यादा लोग उभर जा रहे हैं, विद्रोह कर बैठ रहे हैं, अब इन लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गृह युद्ध जैसा माहौल खड़ा हो जाएगा। तब इसको सौंप दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट नियम बनाने लगा और भारत में लागू होने लगा। उसमें से 1860 जो आपका ये बना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके आधार पर अभी एनजीओ बना है, और उसी एनजीओ के तहत चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, चाहे अयप्पा हो, चाहे डीएवी हो, सब उसी के आधार पर चल रहा है। अब वहां पर क्या किया गया, एनजीओ क्यों बनाया गया कि भारत में विचित्रता बहुत ज्यादा है, विभिन्न नस्ल के लोग यहाँ हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, कद काठी फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ये भिन्नता है। तब बात उठा ब्रिटिश का विरोध अगर 1857 ईस्वी में कोई कर रहा था तो कौन नस्ल का लोग कर रहा था। इसी के लिए ब्रिटिश के पास भी कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं था, तो उसको भाड़े से पैसा दे करके एक आदमी को आयरलैंड से बुलाता है, जिनका नाम रहता है मिस्टर एच.एच. रिजले। उस समय पूरे दुनिया में सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और ये काम करना शुरू किए, इनडायरेक्ट में काम करना शुरू कर रहे हैं कब से, करीब 1871 से, और उसी को ले जाकर के उसको रूप देने के लिए कोशिश कर रहे हैं 1891 से लेकर 1901 में जाके फाइनल कर दिया। और जब एच.एच. रिजले यहाँ पर आते हैं तो देखिए कैसे आपका, ताकि कोई जगह भूल चूक ना हो, 20 साल तक वो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और ये सीआरआई और ये टीआरआई आकर के 6 दिन नहीं रिसर्च किया है और एक निष्कर्ष निकाल के दे देता है। और उतना बड़ा विद्वान आदमी 20 साल तक उसके बारे में रिसर्च करता है। इसीलिए वो चाहता था क्या, न्याय हो, अन्याय ना हो, किसी के प्रति भी अन्याय ना हो। वो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं
और अलग अलग नस्ल के लोगों को निकालते हैं और उसमें पैरामीटर क्या रखते हैं, मापदंड क्या रखते हैं? मापदंड रखते हैं शरीर का ऊंचाई। कुर्मी का एवरेज ऊंचाई कितना निकला? 5 फीट 4 इंच। भारत सरकार अभी जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चाहे ईयर का हो, चाहे फील्ड का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे बीएसएफ का हो, वो सब ने रखा है 5 फीट 5 इंच। हमारे बच्चों का 5 फीट 4 इंच निकल रहा है, पूरा पैरामिलिट्री में फेल। नतीजा हमारा बच्चा मिलिट्री में नहीं जा पा रहा है, एयरफोर्स में नहीं जा पा रहा है, नेवी में नहीं जा पा रहा है, फील्ड में नहीं जा पा रहा है, बीएसएफ में नहीं जा पा रहा है, महासूबे में। तो हम लोगों को क्या ये डाटा को समझ करके सरकार के पास में आग्रह नहीं करना चाहिए था? मेरा एवरेज डाटा जब 5 फीट 4 इंच आ रहा है, 1 इंच का फर्क है, तो ऐसी स्थिति में उसको एवरेज, इनकी संख्या ज्यादा है तो एवरेज हाइट को रिलैक्सेशन किया जाए। कभी हम लोग कोशिश नहीं की। अब यहां पर आते हैं, देखिए आधार कैसा चुन रहे हैं हाइट में। अब आ रहे हैं क्या शरीर का इनका रंग कैसा है, तो बोल रहे हैं कि इनका रंग काला नहीं है और इनका रंग गोरा भी नहीं है, इनका रंग तांबा का रंग का है। अब वो देख रहे हैं क्या शरीर का बाल, माथा का चूल, तब वहां पर देख रहे हैं इनका बाल सीधा नहीं है और घुंघरेला भी नहीं है, रिंकलिंग जिसको कहा जाता है। इनके माथा में बाल की संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये लोग चारला माथा वाले नहीं होते हैं। उसके बाद क्या आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या, माथा का लंबाई को नाप रहे हैं। लंबाई को कहां से, जहां से यहाँ चश्मा पहनते हैं, यहां से लेकर करके इधर पीछे तरफ जहां गड्ढा है, इसका नाप रहे हैं लंबाई, और नाप रहे हैं इसका क्या चौड़ाई, और इसके आधार पर निकाल रहे हैं। इसी को कहा उन्होंने सिफेलिक इंडेक्स। उसके बाद फिर वो निकाल रहे हैं क्या, ये जो कपार आप देख रहे हैं, कपार का लंबाई को नाप रहे हैं और कपाई का चौड़ाई को नाप रहे हैं, और हर जगह पर चौड़ाई को भागा दे रहे हैं, लंबाई से गुणा कर रहे हैं 100 से, तो इसको कहा फेशियल इंडेक्स। उसी ढंग से नाक को नापे, आंख को नापे, होंठ को नापे, और ये पूरे पैरामीटर के आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये कुर्मी द्राविड़ नस्ल के हैं। आज कहते रहे और हिजरे साहब 20 साल तक रिसर्च कर करके हमको द्राविड़ नस्ल का कहा है, और आज तुम 6 दिन रिसर्च करके कह रहे हो हिंदुआइज हो गया है। आधार क्या है? हाँ, अब समेट में। अब यहां पर देखिए क्या स्थिति है, देखिए थोड़ा सा नाखून है, नाखून है आप लोगों को, नोक जगला के हमरा नहीं कोई नोक की नहीं देखबे तो रानी एखन ना देखिए, घर जाके देखबे लाइन पावे, लाइन एरकम पावे। और द्राविड़ एक गुण लगे, এটা লম্বা লাইন পাবে করবে, আর যেগুলা লাগত সেগুলোর ভিতরে হ্যাঁ লাইনটা नहीं है। हमरा के नाखे के तो कोई लिखलाई के ना, हमरा के नाक दिया है एक जठिन में बहरा है सेठिन छटकार हो, और एक घटका जेटा है सेटा चौड़ा, और जो गिला किना देखबे एकदम सोझा, एकदम लाइन रकम छुरी गिला रकम धार जाता है। आखी को जो राजाटी हो, से राजाटी 4 रंग हो पूरा दुनिया है, हमरा भीतर केरिया रंग पावल जाए। और देखी लो तरानी यहाँ जितना लोग बसल है सबको आखी जो राजाटी हम सबको केरिया तो, और प्रतिटी लोग नाखा नखे ए लाइन गिला पावे। घुरी के देखबे ए धाइते যখন देखिए যেটাকে টেপনি দাগ তরানি কই হয়, সেই টেপনি দাগটাও দু রকম রয়। একটা টেপনি দাগ হয় কিনা গোল, এটাকে যেগুলাই দেখি যেগুলাই ই করত জ্যোতিষ যেগুলা দেখি के लाइन টা দেখি के कोथी जे है गोल जे चिन्हाटा है
এক গোল চিহ্নটাকে ওখানে চক্র করতে আর একটা কিনা একটা এরকম ইউ আকারে করে এটাকে সংখ্যা করতে দ্রাবিড়ের কোনা কিনা গুণ হলো 5টি আঙ্গুরের ভিতরে 3টি আঙ্গুরের যোগ জরুরি हिंदी हाँ कुर्बान हिंदी में बोले हाँ तो यहाँ जो आप देखते हैं यहाँ जो टिप्पणी दाग जो देते हैं आप ये दाग जन्म के समय से जो था मरण तक वही रहेगा सिर्फ वही नहीं आपके बच्चा में भी जाएगा ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा तो ये 5 अंगुली में से 3 अंगुली में कुर्मियों का ये गोल वाला चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा और आज लोगों में अगर देखेंगे तो ऐसे ही यू के जैसे आकार का मिलेगा 3 अंगुली में कम से कम मिलेगा ये शरीर में हम लोग देखते हैं क्या ये शरीर में हम लोगों का बाल होता है चूल और इसी के यहाँ नीचे छेद होता है उसी से घाम निकलता है और ये घाम जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में हम लोगों को 170 होता है छेद और आर्ज लोगों में 117 होता है और ये आधार पर उन्होंने कुर्मियों को कहा ये द्राविड़ नस्ल के हैं। आज फाइंडिंग कैसे निकाल रहा है कैसे लोग रिसर्च कर रहा है आज तक हम लोग कभी कोई भी आदमी अभी गेट में घुसते घुसते एक बैनर में लिखा हुआ था कॉल कुर्मी कोड़ा वेद विधि छड़ा अभी लिखा हुआ ये साधारण शब्द नहीं है अरे लोग बोल देता है वेद वेद का लिखने वाला कौन है हम प्रश्न उठाते हैं ये प्रश्न उठाना पड़ेगा आप लोगों को एनीवे हम ये जरूर आप लोगों से आशा रखेंगे अभी संतोष बाबू हैं नेगाचारी के बारे में बहुत अच्छा वर्णन करेंगे चारियान जी हैं ये शुरुआत किए हुए हैं और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ भाखी और चारी का लेकर के बात उठ रहा है मगर हमारा बाप दादा का पूर्वज का जमीन अगर हम जोत रहे हैं और उसका हम अगर हिस्सा मांगते हैं तो बाप दादा का किया हुआ गतिविधि को हम हिस्सादार बनेंगे या नहीं और अगर बनना चाहते हैं अगर कोई कहेंगे कि नहीं उनके द्वारा चलाया गया रीति रिवाज को हम मानने से इनकार करते हैं तो आपके अंदर में इतना मोरलिटी होना चाहिए कि उनका जमीन को भी हम सब त्याग करें और अगर उसका जमीन को आप त्याग नहीं करते हैं तो वैसे स्थिति में उनका नेक नीति नेकाचार जो है उसको आपको अपनाना पड़ेगा ये आपको कसम खाना पड़ेगा अगर एक चीज के चलते हमको कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने से रोक रहा है वो है ब्राह्मणिकल कल्चर को हम अपनाए हैं तो यही कल्चर को जिस दिन आप तिलांजलि दे देंगे उसके बाद इन लोगों के पास क्या बचेगा इसका मतलब क्या हो रहा है इसके लिए कोई सरकार दायी नहीं है अगर कुर्मी ही जब तक अपना बाप दादा का रीति रिवाज को नहीं अगर स्वीकार करके चलेगा तो ये अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध नहीं होगा किसके चलते ये कुर्मियों के चलते ही होगा एक बात कहा जाता है हम अगर अपने आप को कहेंगे हम बहुत बड़े विद्वान हैं मगर हम अगर विद्वता का परिचय अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई मानेगा हम कहेंगे हम अरबपति हैं तक कि मेरा रुओ पूछो तो जब तक हो इसना इटा देखा हो कहां पर मेरा कहने का मतलब है आपका कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी प्रकृति का पुजारक नहीं होता है आकृति का पुजारक होता है और आप जा करके देख लीजिए हम लोग आकृति का पुजारक कभी नहीं है हम लोग प्रकृति का पुजारक रहे हैं तो ये परिस्थिति में
हमको लड़ना क्या चाहिए, एक तरफ सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। अभी हम जो बात बोल रहे हैं ये सैद्धांतिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान क्या होगा, जो चीज बोल रहे हैं वो दिखना भी चाहिए, और अगर दिखना अगर है तो उसी के लिए आना पड़ेगा आपको चारी, और इस चारी का नाम हम लोग दिए है नेगाचारी। और ये नेगाचारी जिस दिन अपना लेंगे सभी कुर्मी, उसके बाद ज्यादा नहीं 10 साल आप खाली नेगाचारी को अपना लीजिए, और संपूर्ण रूप से संपूर्ण लोग अगर इसको अपना अगर लेते हैं तो मात्र 10 साल के अंदर में आपको कोई भी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने से रोक नहीं सकता। अब आपके हाथ में, आप चाहते हैं तो नेगाचारी को अपनाना पड़ेगा, नहीं चाहते हैं तो अपना चलते रहिए। ब्राह्मण और वैष्णव अभी उड़ीसा से आई हुई थी, वो लोग बोल रही थी, चलाते रहिए। लोग बोलता है आशीर्वाद लोग देता है, अरे हम अपने जीवन का बात बता रहे हैं। आज तक हम व्यक्तिगत अपना जगह पर, अपने जहां हम रहते हैं, आज तक कभी कोई ब्राह्मण से हम पूजा नहीं करवाए। हमको बोलता है नास्तिक है, बोले नास्तिक तो परिभाषा क्या होता है पता है आपको? आप नास्तिक बोल देते हैं। शाब्दिक अर्थ में क्या आता है? जो आस्था नहीं रखता है। अरे हम तो आस्था रखते हैं अपना बाप दादा को, तो हम नास्तिक कैसे हुए? हम तो आस्था रखते हैं। यहां आकर के परिभाषा भारत में क्या दे दिया? जो वेद को नहीं मानता है वही नास्तिक है, और जो मानता है वही आस्तिक है। परिभाषा ही पलट देता है लोग। अरे उसके लिए वैदिक या अवैदिक शब्द को अपना सकते थे, आस्तिक नास्तिक से इसका क्या मतलब है? प्रश्न उठाना पड़ेगा, और गंभीरता के साथ जहां भी मीटिंग हो उस मीटिंग में आप लोगों को वहां पहुंचना पड़ेगा, और गंभीरता के साथ सुनना पड़ेगा। आप नहीं गंभीर बनिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। सरकार गंभीरता के साथ काम करती है, तो अगर सरकार गंभीरता के साथ काम करती है, आप भी अगर गंभीरता के साथ काम करते हैं, तो उस जगह पर जाकर के दोनों का टाई अप होगा। कोई चैलेंज का जरूरत नहीं है, किसी से इनकाउंटर का जरूरत नहीं है। आने वाला दिन में आप लोग 2 काम को जरूर कीजिए, खाली नेगाचारी को अपनाइए और इस भाषा को जितना हो सके बढ़ावा दीजिए। अगर मैं ज्यादा नहीं 25 से 30 साल अगर बचूंगा, तो मैं अपने आप में इतना दम रखता हूं कि अनुसूचित जनजाति में कुर्मी को सूचीबद्ध करवा के मरेगा। हाँ, कुर्मियों के भाषा के बारे में, कुर्मी का उत्पत्ति के बारे में, कुर्मी का बिहेवियर के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा है, मगर 2025 में मैं रिटायर्ड करूंगा। अगर सरकार कोई दूसरा पद अगर न दे, तो मैं 2025 मई महीना छोड़ करके जून महीना से अपना बाकी जीवन समर्पित कर दूंगा कुर्मी आंदोलन। और उसके बाद बात करेंगे माछे खोतना दौड़ और पानी खोतना दौड़ है कथा। तो बहुत ज्यादा समय ले लिया आप लोगों के बीच में। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे, मजाक के दृष्टिकोण से अगर कोई चीज को लीजिएगा, वस्तु स्थिति फैक्ट है, बहुत ही मजाक वाला नहीं है, गंभीरता के साथ सोचने का चीज है। गंभीरता के साथ सोचने समझने की आवश्यकता है। बिना समझे हुए कभी कोई आंदोलन न बढ़ा है न बढ़े। मारा पीटी कर ले सकते हैं, रोड को ब्लॉक कर दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, मगर निर्णय तो शांति से ही ना होगा। मारा पीटी कर लेंगे हम लोग, मगर जब जहां पर इसका जजमेंट होगा, जज जहां बैठेगा, वहां क्या लड़ाई झगड़ा से आप फरिया सकते हैं? एक काम आप लोगों को और करना पड़ेगा। जितने आपका एमएलए हैं, जितना एमपी हैं, उनको आप लोगों को एक जगह पर बैठाना पड़ेगा, तीनों स्टार स्टेट का। और बैठा लेने के बाद उन लोगों के बीच में बात को रखना पड़ेगा। उन लोग भी चीज को समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे। हम वार्तालाप कई लोगों के साथ किए हैं, मगर उन लोग एक धारणा नहीं बना पाए हैं कुर्मियों के बारे में।
अभाव है, जानकारी का अभाव है, और जानकारी का अभाव ही समस्या का कारण बनता है। यही बात अंतिम में कहते हुए आज के लिए आप सबों का अंतिम विदाई। जोहार।